Good afternoon, everyone. I welcome you all to this second module of Fundamental of Internet of Things. In last lecture, we talked about what is Internet of Things, why do we need it, what is the basic need behind it, what are its capabilities, and then we had a short discussion regarding its origin of Internet, how does all of the things, all of the technologies, they clubbed up together to give form to how the Internet of Things originated. So we have till now we have a brief idea of what is Internet of Things, and related to the discussion which we had in a first lecture, we can conclude that IoT enables us to utilize our resources efficiently, and it reduces the human effort up to a remarkable extent, and obviously it saves time. So this was the discussion in the first module. Now here we'll be talking about that how does this Internet of Things, how does all these things around the globe, they club up together to share a similar platform and facilitates, or we can say makes life easier and comfortable for the human being. How does this happen? Now simply a slight idea how the mechanism, how these things are actually working, what is the mechanism behind. So जैसा हमने कहा था IoT, it is basically automating the things, and things they act autonomously to facilitate us. Now कुछ भी अपने आप नहीं होता, there has to be something behind everything. There is something behind everything. So basically the first and foremost entity in this Internet of Things is a sensors. Sensors, simply at this point of time, we can understand that it is basically a transducer which converts one form of energy to another form of energy. Sensors are available for each and everything in the world, like pressure sensor, heat sensor, temperature sensor, wind sensor, sensors for evaluating the pH value of the soil, sensors for sensing the disease in plants, and whatever thing that your mind might come across, we have sensors for that. So we require the first entity in this is basically a sensors which sense the information. Now the sense information has to be converted into what you call as first some processing has to be done so that the information is used for us. Also it has to be converted into an electrical signal so that it can be further processed. So we need some local processing unit, and whenever you are processing anything in computer, also if you are running some program or to require some processing space. So that is why we require some memory for this process, to enable this processing, also to store some ad hoc data as and when required. So we require some local storage. After that we need a network, a transmitter, receiver to transport this information to the external world. एक सेंसर ने information sense करी, process किया, transferable form में, transmitting form में उसको convert किया, then at the end of the day transmitter is required to send this information to the external world. All these four entities together are available in the market, encapsulated in a one unit which is called as sensor mote, M-O-T-E, sensor mote. Once this information is transmitted, we need an internet connection for sending it to wherever we want, and after we need this information. Once this information reaches the cloud, we need this information. We need to extract the meaningful information. We need to extract the meaningful information from the sensed data. For that, we require a cloud processing, and finally, we require a cloud storage. So this is basically a vague and a brief, or we can say preliminary kind of idea behind how things are working in IoT platform. So I'm sure that you might be confused up till now. So to eradicate this confusion, आपकी इस confusion को थोड़ा सा कम करने के लिए, let me give you what you call as one scenario, wherein we'll be taking a scenario that how this what you call as how all this information is basically working together to make life what you call as convenient for us. And
सो अभी तक जो हमको समझ में आया, वी नीड सम इंफॉर्मेशन टू बी सेंस्ड, आफ्टर दैट जो सेंस इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रोसेस इट. वंस वी प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, we need to extract the meaningful information which can be of our use, and once we have done this, further processing has to be done to make that information a usable form. So we can say that Internet of Things has changed the world. जिस हिसाब से हम देखते हैं, जिस हिसाब से हम गाड़ी चला रहे हैं, the way we purchase, even the electricity is supplied to our homes. Now taking some car which is embedded with a sophisticated sensors, rather all, हर एक सेंसर एक वैल्यूएबल डेटा भेजते हैं. Now this data tells us how these things work, but exactly ये सारा how this entire huge data is collected. Now taking an example, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एंड या फिर सिटी के रेजिडेंट्स को या फिर हमारे मेडिकल सपोर्ट या सिटी रेजिडेंट्स को बता रहे हैं किस तरीके से हमारी फार्मिंग हो रही है. ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए अवेलेबल है. एंड एक प्लेटफॉर्म बनता है जिससे डिवाइसेस कम्युनिकेट करें. जितने भी डिवाइसेस हैं सारे कम्युनिकेट करते हैं, एंड दे कम्युनिकेट विद द इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म. दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली कलेक्ट्स द डेटा एंड सेंड्स इट फॉर एनालिसिस where the industry specific need is analysis. एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार, आपकी इंजन लाइट ऑन हो जाती है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके इंजन में, समथिंग और अदर इज मैल फंक्शनिंग. अब पता नहीं छोटी प्रॉब्लम है बड़ी प्रॉब्लम है. सो जैसे देखते हैं, मतलब सपोज कि वो सेंसर है उसमें, जो ये गाड़ी है उसके ब्रेक सेंसर्स फेल हो गए हैं, मीन्स ब्रेक शू चेंज होंगे. ये इसी तरीके के हज़ारों सेंसर्स हमारे गाड़ी में होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, और ये सारा का सारा डेटा सेंस करके दे गैदर फ्रॉम सेंड टू अ गेटवे, दे सेंड इट टू द इंडस्ट्री. और ये जो है सारा का सारा डेटा जो है, जितना भी रिलेवेंट डेटा है वो मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पे पहुँचता है. बट जितना भी ये डेटा है, कार्स गेटवे जो है वो सिक्योरली कनेक्टेड होना चाहिए क्लाउड से. अब ये जो प्लेटफॉर्म है, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ अपनी कार वो डेटा कॉन्टीन्यूसली भेजते रहते हैं, और ये डेटा कॉन्टीन्यूसली मंथ वाइज, ईयरली, डे वाइज इट कीप्स ऑन कलेक्टेड बाय द इन डेटा. तो जैसे ही ब्रेक फेल का सिग्नल वो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, एक ट्रिगर जनरेट होता है. मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म को देखता है क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या इशू है उसके इशू में, उसके केस में, उसके बाद जो है एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं. जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी कार स्कैन होती रहे, जैसे ही रेवेकर कार की इन्फॉर्मेशन आएगी वो देखेगा कि भैया ब्रेक्स नीड है, सर्विस सेंटर में वो अवेलेबल है या नहीं है, नियरेस्ट सर्विस सेंटर उसको बताएगा, और जो भी उसको सर्विस ऑफर्स देगा वो देगा. उसके बाद इट इंश्योर्स दैट एजेंसी के पास वो ब्रेक शूज अवेलेबल हैं. और ये एनालिसिस जो है ना, हज़ारों सेंसर्स गाड़ी में लगे हुए हैं जो कॉन्टीन्यूसली इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी कार इज सेंडिंग टू दिस डेटा इज कॉन्टीन्यूसली एनालाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स सिटिंग इन द इंडस्ट्री. और वो देखते हैं, अब इसी वाले कार में देखते हैं, अगर इसी तरीके की प्रॉब्लम बहुत सारी गाड़ियों में आ रही है तो वो लोग देखते हैं कि वो किसी एक स्पेसिफिक यूनिट से निकली हुई है. अगर एक यूनिट से निकली हुई है तो क्या एक ही दिन निकली हुई है, उस हिसाब से अगर एक ही तरीके से, देन बेस्ड अपॉन दिस गाड़ी वापस मंगा लेती हैं. और जो एक कार है, जैसे ही उसका ब्रेक शू, कस्टमर को फ़ायदा है, उसको टाइमली आपकी सर्विस मिल गई, मैन्युफैक्चरर को अपने इंफॉर्मेशन पता पड़ गए, और ये सारा का सारा इजीली ऑटोमेटिकली इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो एक बार दोबारा से एक बार इसको हम अगर रिकंसाइल करें इस वाले वीडियो को, एक बार हम लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन, दैट वी कैन सी दैट basically what's happening is this is a pretty kind of a thing. So कार में हजारों तरीके के सेंसर्स हैं which continuously keeps on monitoring every car which is on the road, and this data is continuously transmitted over to the internet. Meaningful data is segregated via gateway and is sent to a IoT cloud platform and send it to where it is desired. In this case आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा जिसकी ये कार होगी उसके पास चला गया. सो IoT इज अवेलेबल एवरीवेयर, चाहे वो आपकी स्मार्ट सिटी हो, मेडिकल हेल्थ केयर हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, और whatever that might come to it, it is affecting every sphere in the life.
इट इज एक्सपेक्ट ये, और ये जो हजारों लाखों बिट्स ऑफ डेटा, इट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग सेंड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म वेयर इट इज कलेक्टेड, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड, एंड इस डेटा के ऊपर जो आपका एनालिसिस है दैट इज बीइंग डन बाय द एक्सपर्ट्स। अब इसी वाले कार के सिनेरियो में, इस वाले कार के सिनेरियो में इंजन लाइट ऑन हुई, इंजन लाइट ऑन हुई तो हजारों में से एक किसी सेंसर ने अलर्ट किया कि भैया यहाँ पे मैल फंक्शनिंग ऑपरेट हो रही है। लेटर ऑन चेकिंग पे ये पता चलता है कि इस वाली जो गाड़ी है उसके ब्रेक शूज काम नहीं कर रहे हैं, उसके ब्रेक्स में प्रॉब्लम है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ये इमीडिएटली गेटवे से ट्रांसफर होकर मैन्युफैक्चरर के पास जाती है। मैन्युफैक्चरर इंश्योर करता है कि ये जो ब्रेक शू हैं कब डले थे, कब नहीं डले थे, लास्ट टाइम उसके सर्विस रिकॉर्ड्स आएंगे मैन्युफैक्चरर, और साथ के साथ वो ये इंश्योर भी करेगा कि जितने भी जो भी नियरेस्ट उसके वो है सर्विस सेंटर, वहाँ पे ब्रेक शूज अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं। इसी तरीके से क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हर एक मैन्युफैक्चरर की हर एक कार, हमारे को पता नहीं चलता बट इट कीप्स ऑन ट्रांसमिटिंग द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस report to the manufacturer. This data is collected, scattered, selected, arranged yearly, arranged day wise, month wise, year wise by each of the top manufacturers. इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप से मैन्युफैक्चरर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरीके की उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, किस तरीके की सर्विस रिक्वायर्ड है, कौन सा पार्ट है, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इससे वो पार्ट आए तो वो ये एनालाइज। दूसरा एक ये कि उसको जैसे ही इंफॉर्मेशन आई उसने इंफॉर्मेशन भेज दिया कि आपके ब्रेक शू का रिप्लेसमेंट चाहिए, ये इस वाले सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है, उसकी लोकेशन ये है, सर्विस कूपन ये है, और अगर उसके कार एक उसमें है व्हाट यू कॉल एज वारंटी में है तो उसने जो भी एबीसी मोटर्स उसके पास का सर्विस सेंटर है वहाँ इंश्योर कर लिया कि उस मॉडल के ब्रेक शूज वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से वट एवर इट मे बी, चाहे वो फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके स्टार्ट प्लग में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके सस्पेंशन में, चाहे शॉकर्स में, चाहे वट एवर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी कार इज सेंड टू अ मैन्युफैक्चरर। इस तरीके के फॉल्ट्स अगर कलेक्टिवली होते हैं तो मैन्युफैक्चरर देखता है कि 85 गाड़ियों में एक तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस यूनिट से निकली हुई है, वो प्लांट का है। जैसे मारुति हजारों प्लांट है, सपोज गाजियाबाद प्लांट से निकली हुई है तो गाजियाबाद प्लांट्स की बाकी गाड़ियों की क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपको टाटा कई बार अपनी गाड़ियां वापस ले चुकी है शॉकर्स की प्रॉब्लम की वजह से, तो दिस इज द वे दिस एंटायर इंफॉर्मेशन या कोई बैच खराब निकला है या कुछ खराब निकला है आती है। दूसरा इससे कस्टमर को क्या फायदा होता है, हैसल फ्री सर्विस, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। मतलब ऑब्वियसली जिसकी भी कार है उसको तो पता नहीं चलता कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर के पास जाती है मैन्युफैक्चरर गेट बैक टू द कस्टमर। सो दिस इज इन दिस वे the things are being made easy for us. So if we talk about some important, this is major components of IoT, then Internet of Things में सबसे important जो मैंने बताया आपको sensor, that is a thing. We need a thing or a device, anything which is capable of sensing something or processing some information, or at least it should be possible to transmit and receive the information by that device. उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इट रिक्वायर्स अ गेटवे ट्रांसमीटर, और वो क्या कहते हैं, गेटवे चाहिए जिससे वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके। दूसरा गेटवे ऑल्सो इंश्योर करता है कि जो भी डिवाइस उससे कनेक्टेड है वो ऑथराइज्ड है या नहीं। दिस इज अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कि मतलब इफ आई एम टॉकिंग टू यू, इफ आई एम रिप्लाइंग टू योर व्हाट्सएप मैसेजेस और सम, आई नो दैट यू आर सेक्शन बी स्टूडेंट। अगर ऐसे ही कोई XYZ मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा या कुछ करेगा तो आई शैल नॉट रिप्लाई टू हिम। तो मेन थिंग इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट भी एक पार्ट है जो गेटवे करता है। इट इंश्योर्स दैट डिवाइस विच इज आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन और विच इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन इज अ राइट। उस गेटवे के थ्रू ये इंफॉर्मेशन गोज टू अ क्लाउड। उसके बाद क्लाउड प्रोसेसिंग होती है। आज की डेट में क्लाउड प्रोसेसिंग काफ़ी वो है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली सजेस्टेड बिकॉज क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेसर्स की रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाती है एंड इट इज़ अ वेरी क्लाउडली अफेयर। सो स्पेसिफिक जो आपके वेंडर्स हैं जो एनालिसिस करते हैं जो है दे गेट देयर डेटा फॉर एनालिसिस, और इस एनालिसिस के होने के बाद वट एवर काइंड ऑफ सर्विस एनीथिंग इज रिक्वायर्ड इज डन फॉर द यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने आपको उस दिन भी एक बार बात बताया था कि जैसे ही सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि क्या कहते हैं, लेट्स से आपने अपने घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगाया हुआ है कि एनीबडी इज टचिंग योर डोर
automatically ping will happen to your mobile phone when you are sitting at your office, and a hidden camera on your door somewhere, that will be activated, and immediately वो आपके जो भी दरवाजे के सामने एक फ्रेम होगा उसके 5-7 फ्रेम कैप्चर करके आपके मोबाइल फोन पे इंफॉर्मेशन दे देगा. सो दिस कैन बी अ हॉक्स कॉल. ऐसा भी हो सकता है कि आपके नेबर का पेट आया और आपके दरवाजे पे टक्कर मार के चला गया, एंड यू गेट what you call as you get a information that somebody is fiddling with your door. तो इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आया उसके बाद इमीडिएटली आपने एक कहते हैं स्टिल कैमरा, कहीं हिडन स्टिल कैमरा आपने किया हुआ, वो इमीडिएटली एक्टिवेट होगा. एक्टिवेट होने के 5-7 फ्रेम आपके नियर बाय डोर एरिया के क्लिक करके आपके मोबाइल पे चेक करेगा. You will check those snapshots, and this entire thing takes place within 1-2-3 seconds. You'll check the snapshot if it is neighbor's pet, okay. If it is not, then you will alert the nearest police station or caretaker or the guard of the society. This is one scenario. Automatically, if these snapshots can be directly transmitted to the security guard of the society or somewhere who are responsible for these kind of information. एक सिनेरियो ये हो सकता है. अनदर थिंग इज दैट दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली the senior citizen are forced to live alone because their kids and wards they leave their homes to make their careers. So उसके लिए बहुत सारे body sensors develop हो गए हैं which keeps on monitoring whatever. Suppose किसी भी XYZ दिल्ली एक senior citizen है, he is having some heart problem. So there are devices which continuously keeps on monitoring the pulse rate and the status of the heart. Whenever something goes haywire, the signal is sensed, automatically sent to the mobile phone of the caretaker as well as to the what you call as the family doctor. Family doctor sees the messages, automatically alerts the ambulance driver, and within 5 minutes, ambulance facilitated and what you call as automated kind of ambulance reaches the home. If the situation is under control, they inject whatever do and cure the patient then and there. If something serious is there, they take the patient to the hospital. So this is some of the examples which I have quoted to make you understand how these things are collaboratively working to facilitate and make things comfortable and easy for us. Next lecture we'll be talking about 1 or 2 specific applications, how Indian defense is making use of sensors, how Indian Air Force is making use of sensors. Also I'll be talking about 1 or 2 patents which your seniors of IoT specialization have filed with me. So we'll be talking about these 2-3 applications in the next module. Now one last and very important thing I would like to tell you ki all the queries round the clock 24/7 are welcome. I am here to answer your queries and solve your problems, but I would not entertain personal messaging on the WhatsApps. So please mail your query on this mail ID. This is specifically for the IoT group, funwithiot@gmail.com. Mail me and I'll try my level best to get back to you as soon as possible. Thanks a lot.